टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के को-फाउंडर हैं, साथ ही साथ आप CEO भी हैं। तो मैं आगे के लिए आई वुड लव टू इनवाइट विनय जी ओवर हियर, एंड यस इट वुड बी माय अर्नेस्ट अपील, सारे लिसनर से आग्रह रहेगा, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट to give all the answers. If not, do write us on our chat box and we will try to get back to you with all the answers. So let's welcome Vinay over here. The entire dice is yours, Vinay ji. So just go ahead. Thank you. Okay, so thank you, Mangesh. And great leader is as great as a team is great. So you all make me feel good and look good as well. So thank you all for that. Very good afternoon, everyone. I can see that we have a sizable audience over here. We have streamed this event as well on Facebook now. So thank you all people who have joined through Zoom as well as people who have joined through some other medias. Cancer is a very, very important topic. Thank you, Dr. Pankaj, for nicely covering out very, very key and very, very important aspects about the cancer. As per World Health Organization in 2021, कैंसर एक डेथफुल डिजीज रहा है, और डेथ्स के वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ डेथ इज कैंसर एज पर WHO इन 2020 प्रोजेक्शन ये भी कहता है कि इन by 2021 there will be an increase of 20% in cancer cases. I personally have experience. I have seen the pain. And I've seen this when my mother-in-law, she fought last year. She succumbed to cancer, and we all could see the pain through which she was suffering from. What we learned from my mother-in-law, I can tell you, किसी भी कैंसर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और मुझे खुद लगता है कि कैंसर एक सिर्फ प्रिवेंट ही नहीं कर सकते हैं, अगले 5 साल में मुझे लगता है कि कैंसर को पूरी तरह से हम खत्म कर सकते हैं. And what gives me confidence is my personal experience. Awareness, being at the right time, being at the right place, and being with the right doctor. If we can follow these 3 mantras, believe me, cancer is beatable. Together, we can definitely beat cancer. And with all the technological interventions which is happening, I'm pretty sure that in next 5 years, there will be a perfect cure for any kind of a cancer. Having said that, जैसे डॉक्टर पंकज ने अपने स्लाइड्स में जो अवेयरनेस हमको दिखाया है, जो चीज़ें हमको बताई हैं कि हम अपनी दिनचर्या के डेली की चीज़ों में कैसे अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन अवॉइड टोबैको, वी कैन हैव अ गुड लाइफ स्टाइल. वी एट आपके लाठी आर लिविंग एंड डूइंग एवरीथिंग अबाउट एल्डर्स. Even elders, our core mantra has been that if you can have a good aging and an active lifestyle, you can prevent lot number of diseases. कैंसर की तो कोई बात ही नहीं है. Pandemic, and another important thing which I wanted to highlight was, give me a second, my screen is not coming. Okay, yeah. Another important thing which again I personally think is, pandemic has shown one thing very clearly. कोई भी बीमारी जो है वो पैंडेमिक से बढ़ के नहीं हुई. पिछले 2 साल में पैंडेमिक ने जिस हिसाब से एक डिवास्टेटेड एक रूप दिखाया है हमको, अब हमको किसी से डर नहीं लगता, तो अब कैंसर क्या चीज है. तो मुझे लगता है कि so in all what I wanted to kind of share my personal feeling is that कैंसर को हम हरा सकते हैं. What we need is again the 3 things: right place, right time, and of course a lot of awareness. There is a data which says that 1 in 68 male will suffer from lung cancer, and 1 in 29 female will suffer from breast cancer in next 5 years. This is again a data from one of the stats. But सबसे अच्छी बात क्या है? We are in the call not to discuss only about what you need to prevent cancer, but also the fact that cancer is beatable, and you can see the slide, get inspired. These are our heroes. My adrenaline, there is a lot of push in my adrenaline personally when I see these heroes, because they have kind of demonstrated very clearly that cancer को हरा सकते हैं. They are cancer survivors. They are on our platform. Hemant ji, he is a 63 years old fitness yoga trainer. Srimati Pramila Gantayat, she is from Orissa, and in the pandemic she was having this disease. She recognized it,
and she was all alone. But then again, that self-confidence and the fact that you can beat anything if you have a strong willpower. I think that Srimati Pramila Gantayat uski जीती जागती एक उदाहरण है हमारे लिए. So this is a slight kind of, I wanted to share that we have people, we have live examples, and we at Aapke Lathi would be much more than happy to get everyone on this call and anyone else as well to meet and to talk to these cancer survivors so that they can also get inspired and they should not panic. So cancer is nothing to really panic. Okay. This slide kind of talks about what all Aapke Lathi is all about. We are a 5 months startup now. अगस्त 15 अगस्त को हम एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि हम लोग पैदा हुए थे. We were born on 15th of August this year, and in last 5 months, in this last 5 months we have really grown. But the entire objectivity and the entire objective with what we started was कि हम क्या अपने छोटे-छोटे अटेम्प्ट से हर एक एल्डर के लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं. And that is what our ikigai, वही हमारा पर्पस रहा है. And I'm very happy to share, my team is on the call, that in last 5 months we have somehow kind of covered that journey. Idea ये है और एक ही सिर्फ सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने अटेम्प्ट से हर एक एल्डर की लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं, हेल्दियर बनाएं, मच मोर एंगेजफुल बनाएं, मच मोर एम्पावर्ड बनाएं. That is what Aapke Lathi all defines for. Suman, next slide please. अब आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी ऑडियंस इस कॉल पे हैं और कुछ फेसबुक लाइव पे जो हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑडियंस इसमें कि मैं ज़्यादा भारी भरकम इंग्लिश वर्ड्स नहीं यूज करना चाहता आप लोगों के लिए, बट बड़ी सिंपल शब्दों में यदि मैं कहूँ कि आपके लाठी का मतलब क्या है, तो आपके लाठी हर एक एल्डर की जुबान है, हर एक एल्डर की वॉइस है. सो आई टेक मच मोर प्राइड इन टेलिंग एनीवन दैट आपके लाठी मीन्स एल्डरली वॉइस. This is the Lathi, this is the support which every elder needs. अब इसको मैं हिंदी में कहना चाहूँ तो 3 हमारे कोर प्रिंसिपल्स रहे हुए हमारे वर्किंग के. पहला है एंगेज, दूसरा है एम्पावरमेंट, तीसरा है एम्पैथी. और हमको लगता है कि यदि हम किसी भी एल्डर को इन तीनों मापदंडों से एक कलेक्टिवली उनके बारे में सोचें और कुछ करें, आई थिंक दैट मे बी इन नेक्स्ट 5 years हर एक छोटे छोटे अटेम्प्ट से we will reach a point where we will be an aging economy, but then will be very strong economy. मुझे लगता है, और ये फोरकास्ट और स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं कि अगले 10 साल में इंडिया will soon transform into an aging population rather than a younger, a youth population. So I think that it is very imperative for all of us to take care of this elder population, not only take care, to protect them, to respect them, to love them. And believe me, यही नैरेशन जो है हम लोग आपके लाठी को लेके आगे निकले हैं कि क्या हम एक फंडामेंटल नैरेटिव एल्डर्स के लिए कुछ एक धारणा है उसको चेंज कर पाएंगे. सो दैट इज व्हाट आवर 3 कोर मंत्रस. सुमंत, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. व्हाट कीप्स अस एक्साइटेड एंड एंगेज्ड? एज आई सेड, 5 महीने के हमारी एज 5 साल 5 महीने की हुई है. वी आर अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ मुंबई. वी आर एंड हैव आवर ऑफिसेस इन रांची एंड लंदन. 3 डायरेक्शन में जो मैंने आपको 3 कोर मंत्रा कहा, उसके अंदर में एक एम्पावरमेंट मैंने कहा था. अंडर एम्पावरमेंट वी आर, आवर प्रोडक्ट इज स्वनिर्भर. हमको लगता है कि हर एक एल्डर वी कैन एम्पावर देम, वी कैन ब्रिंग देम टू द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, एंड देयरबाय वी कैन ऐड टू द ओवरऑल डिजिटल इंक्लूजन टारगेट which government of India, the current government has. So Swanirbhar is an elderly empowerment platform. दूसरा है आपका एम्पैथी. मैंने कहा था किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पैरों को उन जूतों में रखें. Until unless we keep ourselves in their shoes, we can't build a great product. That has been my vision for my team at Aapke Lathi. We think that empathy is the most important thing whenever you design something for elders. And that is what our defines our product called ActAge. बीच में जो आप देख रहे हैं, इसमें 6 तरह की सर्विसेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं. That includes everything related to active aging. एजिंग सभी करते हैं. Can you make that active? तो उसके अंदर में डॉक्टर्स ऑन अ कॉल, वी हैव डायग्नोस्टिक्स, वी हैव मेडिसिन्स, वी हैव हॉस्पिटल्स, एंड वी आर ऑलरेडी लाइव
in Ranchi with couple of services. I will talk about that very quickly in my next slide. But then a couple of the last one which you see is engage. ये कहने की बात नहीं है, ये आप लोग सब जान रहे हैं, और जितने भी लोग इस कॉल पे हैं, आप अपने घर में भी रहते हैं तो अकेले भी रहें घर में तो आप बहुत खुश रह सकते हैं, बट आप किसी ऐसे कमरे में रहे जहाँ पे बहुत लोग हैं, वहां भी आप लोनली रह सकते हैं. तो एंगेजमेंट का डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डू वी एंगेज विद पीपल? आवर आइडिया ऑफ एंगेजमेंट इज वेरी वेरी क्लियर दैट हर एक बंदे की कहानी होती है, हर एक एल्डर्स की कहानी होती है. हाउ डू वी एंगेज देम ब्यूटिफुली एंड नाइसली, एंड दैट इज वेयर द प्रोडक्ट नेम इज हम तुम, क्योंकि हर एक एल्डर्स की कहानी है. आपकी लाठी हम तुम is there to listen to that story, and not only listen to that story, do something much more on that. So these are the 3 products under 3 core mantras: empowerment, empathy, engage, and that is what defines the entire character of Aapki Lathi. This slide is, as I said, Ranchi is our think tank. Ranchi एक शहर है जिसने it is a city which gives you that extra fuel. I sometimes feel that, क्योंकि इस शहर में एक चीज बहुत अच्छी चीज है, लोग थोड़े से लेट डाउन कल्चर है, बट देन दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, responsive people. I am very very glad to share today on this in this live webinar that we are already live with this very exclusive plan called Flexi Care. हम अक्सर कहते हैं कि हेल्थ केयर अफोर्डेबल होना चाहिए, but in my entire experience, and I'm not a doctor and I'm not a healthcare professional, I'm a telecom guy. 16-17 साल से मैं टेलीकॉम एक्सेंचर जैसे कंपनी में मैं काम कर रहा था. But then certainly one thing which I have found is अफोर्डेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है. क्या अफोर्डेबिलिटी 20 रुपया पर पर्सन है या अफोर्डेबिलिटी 2000 रुपया पर पर्सन है? क्या मुझे मेदांता में जाके वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो कि मुझे एक किसी सेकंड क्लास टियर 2 में सिटी में मिलेगा? नहीं मिलता. When you go to Medanta, you have to find several forms, you have all the facilities, but then at the end of the day, what you get is again a bureaucratic setup. So affordability, accessibility बहुत important है किसी भी elder care या किसी भी health care के लिए. Flexi Care is that plan where we are saying that 20 रुपया एक elder आप अपने दिन में सिर्फ 20 रुपया खर्च कीजिए, and what we can offer you is a kind of a very active and a very nice healthier lifestyle. So I will not go into the details. Objective was to tell you that Aapki Lathi stands for every elder, and we are targeting to have a very inclusive growth for every elder in this country. And to end with, I can definitely say that in coming months, please expect much more things from our end, right? आप लोग सबका आशीर्वाद चाहिए. I know that कुछ एक चीजें हम लोग ठीक से नहीं कर पाए हों इस वेबिनार में, but then I will now open and I will request Mangesh if you can open the forum for question and answers. I am pretty sure बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे. बिलीव कीजिए मेरे दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस फोरम को अगले 10 मिनट जितने भी हमारे पास टाइम है, प्लीज आस्क क्वेश्चंस एंड डू नॉट वरी अबाउट द लैंग्वेज. हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज आप पूछ सकते हैं. मैं खुद 3-4 लैंग्वेज जानता हूं, and I'm pretty sure that everyone on the call can understand. So without any hesitation, Mangesh, let's open the Q&A part. So once again, it's our request to all our listeners. आप लोगों के पास आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप सब बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं. बस एक ही बात का आग्रह रहेगा कि अनुशासन बरतें. And one time we'll be taking one question and we'll try our level best to put in our efforts to give you all the answers. In case we are not, then our tech lead Sumant have already shared our email ID into the chat box. आप सब अपने प्रश्न हमें email भी कर सकते हैं. तो हम सब लोग एक-एक करके प्रश्न लेंगे. If anyone have any questions, please unmute yourself and ask us the question. एक कॉमन धारणा मैं बताना चाहूंगा. ज्यादातर जो क्वेश्चन हमसे पेशेंट्स आगे पूछते हैं जब हम बोलते हैं कि यहाँ ट्रीटमेंट करवाना है, तो ज्यादातर लोगों का ये सोचना है कि अगर कोई बायोप्सी करेंगे या सुई की जांच करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा. तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए. ये जो भी ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है कि नीडल टेस्ट करना है, बायोप्सी टेस्ट करना है, ये सब इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस हैं जो यूएस और यूरोप के अंदर
बहुत सारी स्टडीज के बाद, जो ऑल ओवर वर्ल्ड स्टडीज होती हैं उसके बाद रिकमेंडेशंस होती हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि आप कुछ नीडल टेस्ट कर रहे हैं तो उससे कैंसर सेल फैल जाएंगे, इसको छेड़ो मत। आप जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली क्या है। सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन सिर्फ शैडोज होती हैं। जब तक आप उसमें उसका सैंपल नहीं लेंगे तब तक आप उसको डेफिनेट नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं है, और विदाउट डेफिनेटिव डायग्नोसिस आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो छोटे मोटे टेस्ट से नहीं डरना चाहिए, एक ये चीज मैं सबको बताना चाहूंगा। और सिर्फ पैसे का अभाव का मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट मत कराइए या दिखाइए मत कहीं पे। फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जरूरी है कि हमारे अंदर वो इंसाइट हो कि हाँ की प्रॉब्लम है और हमें इसको दिखाना है, रादर देन घर के आसपास दिखा के प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है उसको भगवान पे छोड़ दें। और कुछ लोग वो ताबीज लगवा लेते हैं, कोई कुछ मंत्र मंत्र या फिर कुछ झाड़ा वाड़ा करवा के घर पे बैठ जाते हैं। तो वो चीजें नहीं करनी है जिससे वो इतना बिगड़ जाता है। और कई सारे एल्डरलीज के अंदर खासकर ये देखा गया है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं या दूर रहते हैं, तो वो बताते नहीं उनको, कि उनको लगता है कि काम से हर्ज होगा या फिर उसको दिक्कत होगी, ऐसा सोच के महीनों तक छुपा के रखते हैं। जब वो बिल्कुल नहीं संभलता है तब वो बताते हैं, जब वो बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो अगर बच्चों की भी चिंता है कि बच्चे परेशान ना हो, तो आप अर्ली स्टेज पे बिल्कुल शुरुआत में बताएंगे तो उसका इलाज छोटा मोटा हो जाएगा। लेकिन उसको छुपाए रखेंगे और लास्ट में जाके जब मजबूर होकर बताएंगे तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो इन जनरल घर के एल्डरली लोगों से कुछ रूटीन बनाइए कि हफ्ते 10 दिन में पूछते रहें कि कोई दिक्कत तो है नहीं है। नहीं तो यूजली एल्डरली के साथ कम्युनिकेशन बहुत कम होता जा रहा है, सब अपने लाइफ में बिजी हैं, कोई काम में बिजी है, कोई दूसरी सिटी में रह रहा है। तो मेक इट अ पॉइंट हफ्ते 10 दिन के अंदर फोन करके या मिलके जरूर पूछें कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिर्फ कैंसर नहीं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, वो बीपी भी होता है, वो शुगर भी होता है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब तो बाद में आएगा। सबसे पहले जागरूकता ये जरूरी है कि हाँ हफ्ते 10 दिन में संभालें घर के एल्डरली को। एक बार फिर से सभी लिसनर्स से आग्रह है कि आप सबके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप सब प्लीज पूछ सकते हैं, या फिर आप सब अपना अपना प्रश्न चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। Once again, I request all our listeners, please come ahead and ask us the questions. We will try our best to reply with all the answers. Mangesh, there is one question. Yes, please. Hello. Thank you, Doctor. एक query in general is like जैसे सपोज कोविड का सिनारियो आया तो हमारे पास एक प्रिवेंटिव टेस्ट है कि अगर हम ये टेस्ट कर लेंगे तो वी नो दैट देयर इज कोविड और नॉट, और देयर आर सम सिम्टम्स। टेक्निकली दो चीजें यहाँ हो सकती हैं, एक कि जैसे कोविड का एक वायरस होता है वैसे ही कैंसर का कोई सीड होता होगा, शायद हम लोग इससे अवेयर है नहीं। और जितने वेरिएंट्स हैं कैंसर के, तो ये डाउट है, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई पॉसिबल टेस्ट है जिससे कि लोग पहले जान सकें या एक रेगुलर इंटरवल पे या एक पर्टिकुलर एज में आके कर सकें, जिनसे वो अवेयर हो सके कि वेदर देयर आर सम सिम्टम्स और देयर मे बी समथिंग गोइंग इनसाइड। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है स्क्रीनिंग से रिलेटेड। स्क्रीनिंग का कंसेप्ट बाहर की कंट्रीज में तो बहुत रिलीजियसली फॉलो होता है, इंडिया में मोर और लेस ना के बराबर होता है। अब स्क्रीनिंग के रिकमेंडेशंस क्या हैं? ऐसा नहीं कि आप सभी कैंसर स्क्रीन करने बैठ जाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाती है कि कितने पेशेंट्स को, कितने लोगों को स्क्रीन करने से कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि कोई कैंसर निकले, और उसको उस अर्ली स्टेज में ट्रीट करने से लाइफ स्पैन में कितना फर्क पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशंस हैं वो एक तो ब्रेस्ट कैंसर की हैं कि 45 से 50 साल से शुरुआत करके हर साल मैमोग्राफी कराई जाए इंडिया के अंदर। जबकि डेथ तक आई कैन गारंटी मुश्किल से कोई होगा जिसने मैमोग्राफी रूटीन में कराई होगी। बहुत ही कम लोग, या तो उनकी कंपनी की तरफ से कंपल्शन हो तो कराते हैं, गवर्नमेंट ने भी वो फ्री अपने जो रूटीन टेस्टिंग होती है फिटनेस टेस्टिंग उसमें ले आए हैं, पर वो ऑप्शनल है। तो 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज से मैमोग्राफी है जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, जो कि करना चाहिए जिससे कि आप डिजीज को अर्ली स्टेज पे पकड़ पाए। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है 30 साल से, छोटे मोटे डिस्पेंसरी में भी जाएंगे तो वो पैप स्मीयर लेते हैं, छोटा सा स्मीयर लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं। कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं है, ना कोई महंगा टेस्ट है। रिकमेंडेशन है कि करना चाहिए, जो कि मोस्टली लोग नहीं करते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, सर्वाइकल कैंसर के लिए है, कोलोन कैंसर के लिए कि 50 साल के बाद आप कोलोनोस्कोपी कराएं हर 3 साल पे। क्रॉनिक स्मोकर्स हैं जो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, उनमें रिकमेंडेशन है कि लो डोज सीटी चेस्ट है जो 60-65 साल की उम्र से कराना शुरू करना चाहिए।
तो रिकमेंडेशंस ये हैं इन जनरल, ऐसा नहीं है कि एसिम्टोमेटिक कोई फिट है 30-35 साल का तो उसको उठा के पेट स्कैन करा लेना चाहिए। जो एज स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस है वो ये हैं, फॉलो कर पाए तो। बट मेरे ख्याल स्क्रीनिंग तो भी बहुत दूर है। सबसे पहले तो हम जो सिम्टम्स हैं उसी को नहीं रिपोर्ट करते हैं टाइम पे। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये फैसिलिटीज मिलती हैं तो डेफिनेटली, अगर ऑप्शन भी हैं तो गो फॉर इट, क्योंकि एट टाइम्स ये सब चीजें बहुत जल्दी पकड़ ली जाती हैं। इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर थे जिनको मेडिकल फिटनेस के लिए भेजा गया था अल्ट्रासाउंड के लिए। तो डॉक्टर थे तो था कि मेरा यार अल्ट्रासाउंड क्यों करना है, उठा के तू देना फिटनेस और मैं जा रहा हूँ करके। किसी तरह से उनको बोला गया इस तरह एक अल्ट्रासाउंड ही तो करा लो। अल्ट्रासाउंड के अंदर लीवर के अंदर मेटास्टेसिस पड़े हुए थे जो कि स्टमक से आए हुए थे। टाइमली पकड़ लिए तो आज वो डॉक्टर साहब हमारे 4-5 साल से स्टिल ही इज वर्किंग, नहीं तो फिर वो बहुत लेट स्टेज पे पकड़े जाते। तो कहने में हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। कोरोना में भी ना हम सोचते हैं दुनिया मर रही है लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली सबको कुछ ना कुछ हुआ। जिसने भी मतलब केयर नहीं की उसको, या उसकी फैमिली में या फिर उसके क्लोज फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी को तो कोरोना हुआ और सफर भी किया। तो ये जो हमारे अंदर टेंडेंसी है कि हमें कुछ नहीं हो सकता, ये दिमाग से निकालनी पड़ेगी। किसी को कुछ भी हो सकता है। तो जो रिकमेंडेशंस हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। दो प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है कि अमूमन जब हम सब डेटा की बात करते हैं तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का भी डेटा अगर हम सब बड़ा देखें डीपली सेग्रीगेटेड, तो खास तौर पे भारत जिस स्थिति पे अभी हम सब खड़े हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की जो एक जो बड़ा जो कंसर्न है पूरे देश में, जब हम सब प्रथम 1000 डेज के बारे में बात करते हैं, तो क्या देखा गया है कि रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में आज के समय में महज 25 से 26% महिलाएं जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग पे जोर देती हैं अपने बच्चों के लिए। तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाने से वी आर इनवाइटिंग कैंसर, या समवेयर इट्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट? ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि कई जगह पे एयरपोर्ट पे उन्होंने सेपरेट स्पेसेस दे रखी हैं कि हाँ ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए आपके अलग स्पेस है, आप यहाँ पे कंफर्टेबली कराइए। इतनी इंपॉर्टेंस तो दे रहे होते हैं सब। अब इसकी इंपॉर्टेंस बच्चे के लिए तो है ही है। एक तो न्यूट्रिशन है, साथ में इम्यूनिटी। ये सबको पता है कि इम्यूनिटी लेवल बहुत लो होगा। आप नेचुरल अगर मदर मिल्क नहीं देंगे, बाहर का देंगे, तो वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह होते हैं मदर के, वो बच्चे में नहीं जाएंगे, इम्यूनिटी बहुत ही खराब होगी। ये तो बच्चे के लिए है। माँ के लिए देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग डेफिनेटली करनी चाहिए। जो 4 to 6 मंथ्स का रिकमेंडेशन है उससे बच्चा भी सेफ रहता है कि आप उसको आर्टिफिशियल फीड्स पे नहीं डाल रहे हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं पकड़ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई इंबैलेंस नहीं हो रहा है, वेट लॉस या जबरदस्ती का वेट गेन नहीं हो रहा है। क्योंकि भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि शुरू के कुछ महीनों में ब्रेस्ट फीड जो है कंप्लीट डाइट होता है बच्चे के लिए। तो वो जोर देना चाहिए। इनफैक्ट वर्किंग वुमेन के लिए भी ऐसा नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है, बेसिकली वो इंक्लिनेशन नहीं है। कुछ ज्यादातर जगहों पे अगर वो बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाने है तो दे गिव टाइम इस कैंसर कॉर्पोरेट्स के अंदर भी। और कैंसर तो रिलेटेड है ही है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। दूसरा प्रश्न आया है कि क्या कैंसर बिना कीमोथेरेपी के क्यूरेबल हो सकता है? आई फील यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द स्लाइड, बट हम चाहेंगे कि अगर प्रश्न आया है तो आपके तरफ से एक छोटा उत्तर भी। सर, कीमोथेरेपी की जरूरत ज्यादातर जो थोड़ा बढ़ जाता है कैंसर उसमें जरूरत पड़ती है। जो बहुत ही अर्ली स्टेज के कैंसर होते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट के हों, चाहे वो आपके लंग के हों, चाहे वो आपका हेड एंड नेक के हों, अगर आपने बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया है कैंसर को तो उसमें कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साथ में ये भी बता रहा हूँ, कीमोथेरेपी से जो डर बैठा हुआ होता है ना लोगों के बीच में कि पता नहीं हमारा क्या बुरा हाल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कीमोथेरेपी पहले के जमाने की जो 10 साल पहले थी वो अलग थी, अभी अलग है। साथ में जो सपोर्टिव केयर में जो मेडिसिन दी जाती हैं उल्टी के लिए और काउंट्स को बचाने के लिए, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। तो हर पेशेंट की कीमो एक नहीं होती है, हर कैंसर की कीमो अलग है। एक ही कैंसर में 4 पेशेंट्स की चारों की कीमो अलग है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसकी टॉलरेंस कितनी है, शुगर है, बीपी है। तो ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा फोकस टेलराइज हो गई है अभी। अभी ऐसा नहीं है कि एक बूटी है और सबको उठा के पकड़ा दिए। अगर मेरे पास 15 पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के होंगे तो 15 के 15 में ट्रीटमेंट अलग चल रहा होगा। और जब शुरुआत में पेशेंट आता है ना, वो एक टेरर के साथ आता है मेरे पास, जब बैठा होता है कि सामने यमराज बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो वो डर निकालना पड़ता है कि भैया तुम ये जो सबसे पहले ना ये
मुंह के ऊपर से जो ये ऊपर जो शिकन है ना, इसको निकालो तुम, कुछ नहीं होगा। बाहर जो पेशेंट बैठे हुए हैं उन सबको कीमो लग रही है। फिर धीरे धीरे वो पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लाना पड़ता है कि हाँ, कीमो से कोई डर नहीं है। तो एक तो कीमो का डर निकालो, और दूसरा कीमो से बचना है तो टाइमली आप रिपोर्ट करो, ताकि वो ट्रीटमेंट बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाए। थैंक यू सर। तीसरा प्रश्न आया है कि सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर क्या है? सिम्टम्स क्या है? सर, लंग कैंसर के कॉमन सिम्टम्स यही है कि कफ हुए जा रहा है, सेटल नहीं हो रहा है, या फिर ब्लड आ रहा है आपकी खांसी के अंदर, या फिर वेट लॉस हो रहा है। और खासकर अगर आप स्मोकर हो तो इस तरह के सिम्टम्स को रूटीन में नहीं निकाल देना चाहिए कि हाँ, सिगरेट पीते हैं, थोड़ी बहुत खांसी होती रहती है। जो सिगरेट पीते रहते हैं, खांसी ऐसा थोड़ी कि रूटीन में होती रहेगी। नंबर एक तो सिगरेट पीना छोड़ दोगे, इतना डर है तो, जो कि छोड़ देना चाहिए। और साथ में अगर सिम्टम इस तरह की है कि खांसी है, हुए जा रही है, और कोई ब्लड ब्लड आ रहा है उसके अंदर, या फिर वेट लॉस हो रहा है, या फिर आपके सपोज एक हाथ के अंदर दर्द होना शुरू हो गया है, कई बार नर्व उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो इस तरह का कोई सिम्टम है तो यू शुड बी अलर्ट। और खासकर ये भी बताना चाहूंगा, छोटे जगहों पे जो टीबी का इलाज करा रहे होते हैं, टीबी का ट्रीटमेंट अगर तो आपको उसका बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में देख के दिया गया है कि हाँ, आपका बलगम के अंदर बैक्टीरिया था और हमने टीबी का इलाज किया है, उसमें तो ठीक है। ज्यादातर जगहों पे वो डायग्नोसिस नहीं बनता है, या तो वो फैसिलिटी नहीं होती है, या फिर वो टेस्ट करते नेगेटिव आता है, उसको प्रिजम्पटिवली टीबी की दवाई दे देते हैं, ये सोच के कि हाँ, टीबी होगा, कि कॉमनली टीबी होता है भैया ऐसे, और ये टीबी होगा। इसमें आधे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको टीबी नहीं होता है, होता कुछ और है, टीबी की दवाई खाते हैं 4 महीने, उसके बाद फिर जाते हैं कहीं और, फिर पता चलता है तो सार्कोइडोसिस पड़ा हुआ है, या फिर वो कोई और इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, और या फिर कैंसर पड़ा हुआ है। तो किसी ने टीबी की दवाई शुरू कर दी है अंदाजे से ये सोच के कि टीबी होगा, महीने भर में सेटल नहीं हो तो प्लीज दूसरे डॉक्टर को एक बार जाके दिखा दीजिए कि कुछ और तो नहीं है। थैंक यू सर। सो उसके बाद प्रश्न आया है कि खास तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां से हम सब आते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, अगर हम सब डेटा का बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का जो डेटा है कि लगभग 83% महिलाएं जो हैं हमारे प्रदेश, खास तौर पे बिहार और झारखंड में, जो अनहाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा है, जहाँ पे अमूमन महिलाएं जानती नहीं है, वो सही समय पे जो है ना ही वो सैनिटरी पैड का यूज करती हैं, ना ही एक रेगुलर इंटरवल पे वो पैड्स को चेंज करती हैं। तो क्या सर सर्वाइकल कैंसर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट रिलेटेड है ऑफ मैल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल प्रोसेस? सो अगर आप डेवलप्ड सिटीज को देखें और उनको कंपेयर करें अंडर डेवलप्ड सिटीज से, टायर 2-3 सिटीज से, डेवलप्ड सिटीज के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड सिटीज हैं उनमें मोस्ट कॉमन होता है सर्वाइकल कैंसर। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है जो आप सब बता रहे हैं, कि वो कुछ अनहाइजेनिक एक्टिविटीज की वजह से कुछ वायरसेस पकड़ती हैं, इन्फेक्शन पकड़ती हैं, और ये जो इन्फेक्शन है ये आगे ले जाके कैंसर क्रिएट करता है। तो जो फर्क है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड सिटीज के अंदर, वो बेसिकली फर्क की हाइजीन का ही है। तो इस पे खास इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर ना इस मुद्दे पे डिस्कस करने में लोग शर्माते हैं, है ना, दिस इज लिंक टू सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड ऑल दैट, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब यू हैव टू डिस्कस दिस थिंग। तो अपने घर में भी सब हिचकते हैं बात करने में कि भाई लेडीज से कैसे बात करें। सिंस आई नो कि यू हैव बीन वेरी एक्टिव इन promoting this awareness, this sanitary pads and everything. So basically I think this should start from school. You should not shy away discussing all these issues, male ho ya boy ho ya girl ho, these issues should be discussed. They should become a routine rather than कि हमें शर्म आ रही है बात करते हुए. So that is very important. So we take a pledge today कि जितने भी आज लिसनर्स हैं और हम सब आने वाले समय में एक कड़ी के तरह बन के मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी जोर देकर के काम करें, so that we can prevent cancer. सर 2 प्रश्न और लेंगे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमूमन जो देखा गया है कैंसर को लेकर के, जो पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो या तो दिल्ली में है, या फिर बॉम्बे में है, या चेन्नई में है, या फिर वेलोर में है। तो क्या भारत सरकार आने वाले समय में दिल्ली बॉम्बे जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, क्या उसको डीमिस्टिफाई या डिसेंट्रलाइज करके से दैट टायर 2 सिटीज में वो किस तरह से पहुंचेंगी, या क्या रणनीति है? और दूसरा, ये ट्रीटमेंट बड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो उसमें सरकार के क्या प्रावधान है या क्या स्कीम्स हैं जिसमें जो पीड़ित परिवार है उस स्कीम्स का उसका फायदा उठा पाए? सर इशू ये है कि फैसिलिटीज गवर्नमेंट भी दे रही होती है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसे हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो जिनको एक्चुअली जरूरत है, जो इनकम टैक्स नहीं भर रहे होते, जिनका ईयरली इनकम कम है,
उनको प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 3-3 लाख रुपए मिलते हैं। इमेजिन 6 लाख रुपए के आसपास थोड़ी सी दौड़ भाग करके इनको मिल सकते हैं, जिसमें पूरा ट्रीटमेंट हो जाए। और ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ही ऑप्शन होता है, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। ट्रीटमेंट चीप भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास पेशेंट हर तरह के आते हैं, ऐसे भी आते हैं बिल्कुल हैंड टू माउथ आते हैं, ऐसे भी आते हैं कि सर आप बोलो, मुंह से बोलो क्या करना है। तो आप अगर बेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो हो सकता है सेकंड बेस्ट भी चल जाए, हो सकता है उसमें से 19-21 का फर्क हो, लेकिन रेट्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ट्रीटमेंट बेसिकली अफोर्डेबल की जा सकती है बशर्ते आप ठीक जगह पे जाएं। और जहां तक हॉस्पिटल्स का है, देखो अभी टायर 2 सिटीज के अंदर भी अब डेवलपमेंट हो रही है, ज्यादातर लोग ऑन्कोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। अब आप देखेंगे बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट डिफरेंट छोटी सिटीज के अंदर भी अपने सेटअप बना के बैठे हुए हैं। और कुछ नहीं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, घर पे शांति से बैठने की बजाय कि हम तो भैया धक्के ना खा पाएंगे, हम ना जा पाएंगे, अरे भैया ऑनलाइन कंसल्टेशन करके अपने रिपोर्ट्स भेजकर गाइडेंस तो ले सकते हो सकता है फिर आपको कुछ दिशा मिले कि हाँ कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस और एफर्ट, कि आपको यूजुअली क्या होता है कि अड़ोसी पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो डरा देंगे कि भैया कहाँ जा रहे हो, वो तो मार डालेंगे, अरे भैया वो तो जहर चढ़ा देंगे, वो तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तू यहाँ चले जा, वहां चले जा, धर्मशाला चला जा, वो उल्टी पुल्टी जगहों पे भेज देंगे। जरूरी ये है कि इनके बताया जाए कि अगर आप खुद घर से निकल के नहीं भी जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक ऑनलाइन कंसल्टेशन किसी स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से एटलीस्ट लें। राजीव गांधी के अंदर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे होते हैं टायर 2-3 सिटीज का, जिनमें एटलीस्ट हम उनको गाइड कर रहे होते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरीके से चलेगा। क्योंकि छोटी जगह पे अगर आपने गाइडेंस देती तो होता है वो ट्रीटमेंट काफी कुछ वहां पे करा पाए। इशू ये है कि छोटी जगह पे सर्जन के पास गए, सर्जन को समझ नहीं आया, उसने कर दी सर्जरी जहां पे सर्जरी नहीं करनी थी। तो वो गाइडेंस बहुत जरूरी है कि वो पेशेंट जागरूक हो कि ये सब चीजें अवेलेबल है। आप भी ये मीडिया के थ्रू ये सब कुछ प्रमोट कर रहे हैं, तो सबके हाथ में मोबाइल है, इट हैज बिकम सो इजी। और अब तो कोरोना ने सबको सिखा भी दिया है कि एप्लीकेशंस कैसे यूज करनी है, ऑडियो वीडियो कैसे यूज करना है, बच्चों को सिखा दिया है। तो जरूरी ये है कि वो थोड़ा सा एफर्ट उस पर किया जाए, या फिर आपने जो एप्लीकेशन वगैरह बनाई है उसका ये यूटिलाइज करें। क्योंकि मैंने देखा आपने अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर सारे जितने भी रखे हैं सब क्वालिफाइड लोग रखे हुए हैं, तो एटलीस्ट they can use your application to reach the concerned doctor who can guide them for treatment in their cities. नहीं आ सकते कोई बात नहीं, पर उनकी सिटी के अंदर भी हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक बार फिर से सभी लिसनर्स से आग्रह है, इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, हम लोग और एक प्रश्न जरूर लेंगे। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट डॉक्टर पंकज गोयल जी इज ऑलरेडी बीन ऑनबोर्डेड विद आपकी लाठी टीम। तो आप सब अगर कोई कंसल्टेशन लेना चाहें या किसी भी तरह का गाइडेंस चाहें तो यू कैन रीच आउट अस। ऐसे डॉक्टर साहब जैसे उन्होंने कहा कि वो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में है, विच इज बेस्ड आउट इन न्यू दिल्ली। तो आप सबसे आग्रह रहेगा कि फॉर एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस, एनी काइंड ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू कैंसर, you all can reach out to us as well as to Dr. Pankaj Goyal. I'm really thankful to our chief speaker today. Thank you so much, Dr. Saab, for all your time from your esteemed busy life. Thank you Vinay ji. Thank you. Thank you so much, the entire Aapki Lathi team, from entire Aapki Lathi team to all our listeners. Thank you so much, Digimark team, Rachit, Statab, and all of you for making this a success. Thank you so much, Doctor, and we will meet very soon back there in Delhi. Thank you so much, Doctor. Thank you so much.